Cool. Thank you. So in the last lecture, we continued with chapter number 3, that was physiography and drainage, and we continued with the physical divisions of India, right? सबसे पहला हमने हिमालयस किया, then we completed North Indian plains, and then we completed plateaus. Okay. So Dhruv sir. Yes sir. I'll be having a question and answer round. So आप अगर randomly कोई भी student को unmute करेंगे, then I'll ask them a question. Let us see कितना revise किया उन्होंने. All right, sir. All right. Should I start now? Yes, sir. Okay, so I will start with a boy with your name, Nishant from Vikhroli. Okay, sir. Easy unmute? Yes, sir, I have. Nishant, can you hear me? I think he left. छोड़ दिया उसने सर. एक मिनट दूसरे को करता हूँ सर. Okay. I'll unmute Rudraksh from Chembur. Yes. Rudraksh, can you hear me? Rudraksh. Can you hear my voice? You can reply, Rudraksh. Hello, Rudraksh. किसी और के पास जाऊं सर? Yes, yes. Rudraksh is not responding. I think so. We can't hear or want to hear. Okay, then let's go with Vihan from Ghatkopar. Okay, great. Vihan, can you hear me? Vihan. Yes, sir. Good, good. Vihan, I'll just phrase the question. You need to answer the question. Okay. Let us see how much you have revised. My question is, if you talk about North Indian plains extend from which state to which state? कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक एक्सटेंड होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स? Vihan? I think he muted himself. Okay. अच्छा. Let it be, sir. मैं थोड़ा बात करता हूँ इनसे. Okay, sir. Yeah. See, I want you to revise. See, I have अभी कैसे कि मेरे को आंसर्स यहाँ पर मिल रहे हैं चैट बॉक्स में, which is correct. It is from Rajasthan to Assam. But कैसे है कि I don't want only like few students who are giving me the answer. I want every student to give the answer. So for that, you need to revise what is taught on a daily basis. मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको पढ़ के आना है, मैं पूछूंगा, तभी ऐसा नहीं होना चाहिए. खुद से भी आपको पढ़ना है. मैं कभी भी सरप्राइज मतलब रैंडम में अगर क्वेश्चन आंसर में रखूं तो मुझको आंसर मिलना चाहिए. ओके. तो हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था, उसके पहले वाले लेक्चर में किया था, वो दोनों चीज का हम लोग को रिविजन होना चाहिए, तो ये वो कनेक्टिविटी होगा. सो द नेक्स्ट टाइम आई वांट यू टू रिवाइज एंड कम. तो जिसका भी मेरे को अगर रिप्लाई भी नहीं आया या म्यूट कर दिया खुद को, तो उसको मैं अलग से एक पनिशमेंट दूंगा. अगर मेरे को क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं तो कोई भी रीजन हो, तो उसने म्यूट किया या उसने आंसर नहीं दिया, तो उसका नाम लिखा जाएगा और ब्रांच पे, और उसको एक पनिशमेंट दिया जाएगा. सो नेक्स्ट टाइम अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, आई वांट यू टू आंसर एंड आई वांट यू टू रिवाइज एंड कम. ठीक है? दिस इज क्लियर? बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. Now, in the last lecture, great. In the last lecture, we started with we continued with physiography of divisions. We did North Indian plains and Peninsula Plateau. I'll have a small recap of what we did in the last lecture. North Indian plains में हमने ये पढ़ा था कि North Indian plains extend from Rajasthan and Punjab in west to Assam in east. It is further divided into two parts. One is Western plains and Eastern plains. Eastern plains are also called as Ganga plains because Ganga river flows from eastern plains. Then we learned that in western Rajasthan is called as Thar desert as well as Marusthali. Okay? Western plains and eastern plains are divided by a mountain system called Aravallis. ये हम लोग ने North Indian plains के बारे में briefly मैं बता रहा हूँ. Then we learned about plateau. Now if you talk about plateau is one of the oldest and stable landform
on the earth as well as in India. Then we learned about plateaus divided into different parts. ठीक है, plateau is surrounded by western Ghats from west and eastern Ghats from east. तो ये हम लोग ने plateaus के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग आएंगे, now we'll come to the next part, that is the coastal plains and islands, the remaining physical divisions of India. So I'll be sharing my screen with you, so kindly hold. Okay, so let us start with the first, that is coastal plain. I'm sorry, it's not island. Yeah. So here we are talking about coastal plains. Okay. Now, if you talk about coastal plains, these are the coastal plains we are talking about. That is west coastal plains and east coastal plains. Now, if you talk about coastal plains, it starts from Gujarat in west and it extends to Orissa in east. One more time. The coastal plains of India starts from Gujarat in west and it extends to Orissa in east. Okay, and the total length of this coastal line is 7,500 kilometers. कितना है? 7500. ये अपना कोस्टल लाइन है. ओके, और कहां से चालू होता है? गुजरात से लेके ओडिशा तक. Now ये जो कोस्टल प्लेन्स है, ये कैसे बना है? Because of the depositional and erosional works of river and sea waves. Again, how these coastal plains are formed? Because of depositional and erosional work done by rivers and sea waves. Okay, और ये जो coast है, west coast और east coast, it is divided into small parts. If you see the image properly, you can see Gujarat coast in the west, you can see Konkan coast as well as Malabar coast. Then in the east, you can see Utkal coast, or it is also called as Northern coast. You can see Andhra coast, and as well as in the south, you can see Coromandel coast near Tamil Nadu. तो ये छोटे छोटे कोस्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर एरिया. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट कोस्टल प्लेन्स फर्दर, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न. इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला. बीच में पेनिनसुला हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. पेनिनसुला प्लेटो कहां पे? बीच में है. पेनिनसुला प्लेटो को कौन बॉर्डर करता है? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बाद में आता है कोस्टल प्लेन्स. सो कैसे है? पहला पेनिनसुला है, फिर पेनिनसुला को कौन बॉर्डर करता है? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. And then the next thing is coastal plains. Now, if we talk about coastal plains, west coastal and east coastal plain are different from each other. There are many dissimilarities in between. ठीक है, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं. तो let us understand west coastal plains and east coastal plains in detail. ठीक है, यहां तक क्लियर है? 7,500 किलोमीटर अपना कोस्टल लाइन, 7500 याद रखना. ठीक है, और ये कहां पर? It lies on the west and the eastern part of which physical division? That is Peninsula Plateau, and there are dissimilarities. Now let us start with the first one, that is west coastal plain. Okay, now if you talk about west coastal plain, it lies to the west of Western Ghats. It extends from Gujarat to Kerala. Gujarat coast से लेके केरला. केरला में एक मलबार कोस्ट. Can you see Malabar coast given over there? तो वो मलबार कोस्ट तक अपना वेस्टर्न प्लेन्स एक्सटेंड होता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इट बॉर्डर्स द अरेबियन सी. मतलब ये कोस्ट है ना, जहां पर ये कोस्ट खत्म हो गया वहां पे अरेबियन सी चालू हो गया. मतलब एक बॉर्डर लाइन है. इट इज अ बॉर्डर लाइन फॉर द मेन लैंड. मतलब यहां पर मेन लैंड खत्म होता है और अरेबियन सी चालू होता है. ठीक है, इट्स अ बॉर्डर. नेक्स्ट वन इज
दिस कोस्ट इज मेजरली अ रॉकी कोस्ट, ठीक है, बिकॉज यहां पर कैसे है कि मेनली इट इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, बिकॉज ये प्लेटो का पार्ट है. नेक्स्ट वन इज एट प्लेसेस स्पर्स टेक्स ऑफ. अभी स्पर्स क्या होता है माने में वो मैं बताता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अभी हम लोगों ने देखा रहेगा ट्रीज को ब्रांचेस होते हैं, तो जो मेन बार्क है वो जो है ट्री का, और बाद में ब्रांचेस आता है. वैसे ही है ना माउंटेन्स को भी है ना ब्रांचेस होते हैं. अभी यहां पर मैं कौन से माउंटेन का बात कर रहा हूं? वेस्टर्न घाट है ना, सह्याद्री माउंटेन्स. तो ये सह्याद्री माउंटेन्स जो है वेस्टर्न घाट्स में, इसके ब्रांचेस है ना आपको कोस्टल एरिया तक दिखेंगे. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अभी सब लोग ने, एवरीवन हैज विजिटेड द बीच, राइट? गोवा में हम लोग गए रहेंगे या केरला में गए रहेंगे, तो बीचेस में आप देखते हो, ऑब्जर्व करेंगे तो बीचेस में ना छोटे छोटे हिल्स होते हैं, ठीक है. अगर आपने देखा आप उसके ऊपर जाके खड़े भी रह सकते हो और उधर से पूरा बीच दिखता है आपको. वो जो हिल्स है ना, वो एक्सटेंशन है माउंटेन का, और उस एक्सटेंशन जो होता है ना माउंटेन का, उसको बोलते हैं स्पर, या उसको ऑफशूट भी बोलते हैं. तो ये एक्सटेंशन इधर तक आया है, ओके. तो आपको ये बहुत सारे एक्सटेंशन जो है वेस्टर्न घाट्स के आपको यहां पर दिखेंगे, एंड इट लुक्स लाइक अ हिल, अ क्लिफ टू बी प्रिसाइज. एक क्लिफ जैसा दिखेगा, और ये जो क्लिफ का है ना, ये इरोड हो के कोस्टल प्लेन्स बना हुआ है बिकॉज ऑफ सी वेव्स एंड रिवर्स, ठीक है. नेक्स्ट वन इज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट. व्हाई? इसका एक रीजन है. अभी ध्यान से सुनना. वेस्टर्न घाट्स का है ना दो टाइप का स्लोप है. कितने टाइप का? दो टाइप का. वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट का वेस्ट वाला पार्ट है, वो स्टीप स्लोप है. स्टीप स्लोप मतलब आप लोग यहाँ पर गए इमेजिका या वाटर किंगडम गए, तो वहां पर मतलब वो स्लाइड होता है 70 डिग्री 90 डिग्री स्लाइड. तो कैसा कितना स्टीप होता है, फटाफट नीचे आते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टीप स्लोप. तो वेस्टर्न घाट का वेस्ट पार्ट स्टीप है, बट वेस्टर्न घाट का ईस्ट पार्ट जेंटल स्लोप है. जेंटल स्लोप मतलब अपना गार्डन में जो होता है ना, सी स्लाइड जो होता है, अपना स्लाइड होता है जिसमें तुम आराम से जाते हो, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में घसरगुंडी बोलते हैं, वो तो वो होता है जेंटल स्लोप. अभी क्या है ना, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न स्लोप स्टीप है, तो रिवर फास्ट जाएगा वहां से, ठीक है. द रिवर विल फ्लो स्विफ्टली, तो उसको इरोड करने का टाइम नहीं मिलेगा. ध्यान से सुनना. व्हेन द रिवर फ्लोज स्विफ्टली बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप, ठीक है, देयर विल बी नो टाइम फॉर इरोजन. तो उधर इरोजन एक्टिविटीज नहीं होता है, इसके लिए वहां पर एस्चुरीज बनता है. क्या बनता है? एस्चुरीज, और डेल्टा नहीं बनता है. मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में एस्चुरीज मिलेगा, डेल्टास नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है. अभी ये एस्चुरीज क्या होता है? एस्चुरी इज अ पॉइंट वेयर द सी एंड द रिवर मीट्स. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरी. कैन यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज अ डेल्टा. तो डेल्टा में आपको दिख रहा है वो रिवर, वो नैरो इसमें से आ रहा है, और बाहर आके देखो वहां पर वो सॉइल डिपॉजिट कर रहा है. क्यों सॉइल डिपॉजिट कर पा रहा है बाहर आके? बिकॉज यहां पर स्लोप जेंटल है, तो उसको इरोजन करने के लिए टाइम मिल रहा है. बट इफ यू सी द राइट हैंड साइड पिक्चर, वहां पर आपको कुछ भी सॉइल डिपोजिशन नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहां पर स्लोप स्टीप है, तो इरोजन होता ही नहीं है. तो एस्चुरी ऐसा दिखता है. व्हाट इज एन एस्चुरी? वेयर सी एंड रिवर मीट्स ईच अदर, बट देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल ओवर देयर, जैसे कि डेल्टा में आपको दिख रहा है. तो हमेशा याद रखना, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स में आपको क्या मिलेगा? ज्यादातर एस्चुरीज. और क्या मिलेगा? बैक वाटर्स. बैकवाटर्स आर फेमस इन वेस्ट कोस्टल प्लेन्स. आपने सुना रहेगा केरला में हाउस बोट्स. तो ये हाउस बोट्स किस में ट्रैवल करते हैं? बैक वाटर्स में, ठीक है. और इसको उधर लोकली, केरला में इसको लोकली क्या बोलते हैं? कयाल्स. KAYALS, कयाल्स, ठीक है. लोकली एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है. The backwaters in Kerala is called as dash. Locally, it is called as kayals, KAYALS, which is used for tourism, जहां पर हाउस बोट चलते हैं, ठीक है. तो ये था वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ओके. अब आते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज ईस्ट कोस्टल प्लेन्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु, राइट फ्रॉम उत्कल और नदर्न कोस्ट टू मलबार, कोरामंडल कोस्ट, ठीक है. कोरामंडल कोस्ट इज अ फेमस कोस्ट इन तमिलनाडु. इट वाज नेम्ड बाय द ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम इन इंडिया, ठीक है. इट वाज ruled initially before Britisher, it was ruled by Chola dynasty. Chola empire अगर आपने सुना रहेगा हिस्ट्री में,
तो उन्होंने वो रूल किया था. एंड दिस कोरामंडल कोस्ट वाज फेमस एंड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेक्टर. मतलब यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड होता था. सी से जो ट्रेडिंग होता था ना, यहाँ पे होता था. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, द ईस्ट कोस्टल प्लेन बॉर्डर्स बे ऑफ बंगाल. जैसा वेस्ट कोस्टल अरेबियन सी है, वैसा ये बे ऑफ बंगाल को करता है. नेक्स्ट वन इज इट हैज formed as a result of depositional work of rivers. यहाँ पर इरोजन उतना नहीं हुआ है, लेकिन डिपोजिशन ज्यादा हुआ है. इसका भी एक रीजन है. ओके, अभी क्या रीजन है मालूम है क्या? मैंने बोला था ना, वेस्टर्न घाट्स का वेस्ट पार्ट स्टीप है, बट ईस्ट पार्ट क्या है? जेंटल. मतलब वेस्टर्न घाट का जो ईस्ट पार्ट है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट कोस्टल प्लेन्स. तो जितने भी रिवर्स वेस्टर्न घाट से चालू होते हैं ना, एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट, तो देखो थ्रू जेंटल स्लोप. अभी जेंटल स्लोप बोला मतलब वो रिवर आराम से जाएगा. अब जब रिवर आराम से जाएगा तो वो क्या करेगा? इरोजन करेगा, और इरोजन करके बहुत सारे सेडिमेंट्स साथ में लेके जाएगा, और बाद में वो सेडिमेंट्स क्या करेगा? जहां पर वो रिवर खत्म होता है वहां पर वो डिपॉजिट करेगा. मतलब कहां पर डिपॉजिट करेगा? एट द एज ऑफ द मेनलैंड. इसके लिए यहां पर बहुत सारा डिपोजिशन होता है ऑफ रिवर्स. और एक रिवर नहीं जा रहा ईस्ट में, वेस्ट से ना सब बड़े बड़े रिवर्स जाते हैं ईस्ट में, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी. ये सब रिवर्स के बारे में हम डिटेल में जब इंडिया का ड्रेनेज पढ़ेंगे ना, तभी हमको पता चलेगा. अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिवर्स ईस्ट में जाते हैं और बहुत सारा सॉइल डिपॉजिट करते हैं. कहां पे? ईस्ट कोस्टल प्लेन्स में. और ये कहां से चालू होते हैं? वेस्टर्न घाट से, और जाता है ईस्ट में. लेकिन ये जेंटल स्लोप की वजह से ये बहुत सारा इरोजन एक्टिविटी करता है. Now many east flowing rivers, मैंने अभी जो बोला, flows from western and eastern ghats and meets the coast. इसके लिए यहाँ पर बहुत सारा डिपोजिशन होता है. And because of the gentle slope of the land, मैंने बोला ना यहाँ पर gentle slope है, तो river flows in a lower velocity and it erodes the soil and carries sediments with it. ठीक है, और ये कोस्ट में लेके जाता है. इसके लिए आपको है ना ईस्ट कोस्टल प्लेन्स में ना इतना डिपोजिशन है कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे आइलैंड्स भी मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल आइलैंड्स. क्या बोलते हैं? कोस्टल आइलैंड्स. ठीक है, ये आइलैंड्स क्यों बना है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन डन बाय रिवर्स. ठीक है, और ये एग्जांपल देता हूं. इफ यू टॉक अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर में देयर आर मेनी आइलैंड्स. और रिवर में आइलैंड्स क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन डन बाय द रिवर. वन ऑफ द फेमस आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर इज मजूली आइलैंड. बहुत फेमस है. ठीक है, तो ये था वेस्ट कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन्स. ओके, तो यहां पर हम ना कोस्टल प्लेन्स का पार्ट खत्म हो गया. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट इज आइलैंड्स. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट आइलैंड्स, मैंने अभी बोला ना कोस्टल आइलैंड्स भी है. इंडिया हैज मेनी लार्ज एंड स्मॉल आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट. But here we are not talking about that coastal islands. We are mainly concerned about two large group of islands. Everyone knows that. Okay, the two large group of islands is one is Andaman Nicobar Island in Bay of Bengal and one is Lakshadweep Island in Arabian Sea. ये दो island के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. Okay, तो पहला हम लोग चालू करने वाले लक्षद्वीप आइलैंड के साथ. अभी आपको मैं बता दूं, ठीक है, this is just a fact. The total number of islands, ठीक है, in India, that is in the sea, we have total 615 islands, 615, जिसमें से 572 islands are located in Andaman and Nicobar and 43 islands are located in Lakshadweep. ठीक है, 572 islands in Andaman and Nicobar and 43 islands in Lakshadweep. इस सब आइलैंड में से कितने आइलैंड्स में हैबिटेट है? मतलब क्या है? 36 आइलैंड्स आर they have an habitat of human beings. मतलब कैसे कि वहां पर हम लोग रह सकते हैं, बाकी सब आइसोलेटेड है, हम लोग गए भी नहीं अभी तक. ठीक है, बिकॉज वो डेंस फॉरेस्ट है वहां पे और अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं है. सिर्फ 36 आइलैंड्स हमने एक्सप्लोर किया हुआ है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोरल आइलैंड. अभी ये कोरल आइलैंड क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड. Now, if you talk about Lakshadweep Island, islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep Islands. मैंने अभी बताया कि there are total 43 islands. Next one is most of the islands in the Lakshadweep are atoll islands. Now, what is an atoll island? ठीक है, this is how an atoll island looks.
if you see there is a island in between and there is a white color ring, ठीक है, bordering the island. वो जो white color का ring है ना, that is coral rocks. ठीक है, वो है एटॉल. अभी एटॉल आइलैंड कैसे बनता है ना, ये फटाक से बनता नहीं एटॉल आइलैंड. इट टेक्स अराउंड 30 मिलियन years टू फॉर्म एन एटॉल आइलैंड. ठीक है, जितने भी एटॉल आइलैंड है लक्षद्वीप में वो सब 30 मिलियन years पुराने हैं. ये आइलैंड कैसे बनता है मालूम है क्या? सबसे पहला वॉल्केनिक इरप्शन होता है सी के अंदर. मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से सुनना. सबसे पहला है ना, सी के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिसके वजह से एक सी माउंटेन आता है. सी माउंटेन मतलब क्या, नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से एक लेयर बनता है और लेयर बढ़ते बढ़ते वो सी के ऊपर आता है और एक सी माउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी माउंटेन. अब वो सी माउंट जब बनता है ना तो उसका ऊपर का हिस्सा है ना पानी के ऊपर रहता है तो अपने को लगता है वो आइलैंड है, बट नीचे देखेंगे तो माउंटेन है. फिर क्या होता है ना, आफ्टर सम टाइम यहां पर है ना आजू बाजू में कोरल ग्रोथ होता है ना. व्हाट इज कोरल? आपने कोरल रॉक सुना रहेगा. इफ यू सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरल रॉक्स. दिस इज हाउ कोरल रॉक लुक्स. लेकिन ये कोरल रॉक्स कैसे बनता है मालूम है क्या? इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म which is called as coral polyps. POLYPS, coral polyps. ये coral polyps कैसा है ना, इनका skeleton ही ना कैल्शियम से बना हुआ रहता है. और ये क्या करता है मालूम क्या? जो सी बेड है ना, अपना सी फ्लोर है, वो सी फ्लोर को लोग जाके अटैच हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट एक्सक्रीटिंग कैल्शियम. व्हाट दे एक्सक्रीट? कैल्शियम. और ये जब पॉलिप्स मरते भी है ना, इफ दे डाई ना, तो वो लोग कैसे ना, दे गेट अटैच टू द रॉक. तो इससे क्या होता है मालूम है क्या? धीरे धीरे वो कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ बढ़ के ये पूरा सा एक कोरल रीफ बन गया. फिर क्या होता है मालूम है क्या? जो बीच का वॉल्केनिक आइलैंड है, अब ये कोरल पॉलिप्स है, इन्होंने कैसे कि एक रिंग बना दिया है और बीच में आइलैंड है. अब वो आइलैंड ना धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कोरल रीफ, व्हाट हैपेंस दैट आइलैंड इन बिटवीन इट स्टार्ट्स सबमर्जिंग, मतलब वो पानी के नीचे जाता है. ठीक है, और वो पानी के नीचे जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा माउंटेन गायब हो जाता है और बाजू में वो रिंग रहता है और बीच में पानी रहता है. उसको बोलते हैं एटॉल आइलैंड. सो एटॉल आइलैंड का जो प्रोसेस है वो स्लो है और बहुत टाइम लगता है उसको. लेकिन ये कौन बनाता है? कोरल पॉलिप्स. पूरा लक्षद्वीप आइलैंड है ना, कोरल आइलैंड है. ये किसने बनाया? कोरल पॉलिप्स ने बनाया. ये पॉलिप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो एक एवरेज टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, दैट इज अराउंड 25 डिग्रीज. ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये कोरल पॉलिप्स है ना, दे आर डाइंग एंड व्हिच इज नॉट गुड बिकॉज उनका काम क्या है? दे मेक न्यू आइलैंड्स इन देयर कोरल आइलैंड्स बिकॉज व्हेन दे एक्सक्रीट, और ये ना कोरल पॉलिप्स एक या दो नहीं रहते, दे आर इन लैक्स. So when they excrete calcium, they are excreting in lakhs. तो उससे कैसे एक पूरा आइलैंड बनता है. और आपको कैसे है कि ये रॉक्स मिलते हैं. These rocks are famous. It is also used in fish tanks, if you see carefully, and they're very expensive. तो ये कोरल रॉक्स है जिससे पूरा आइलैंड बना हुआ है. ठीक है, ऐसा लक्षद्वीप में है, मलेशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है. So there are many coral islands. ठीक है, जो एटॉल से बना हुआ है. तो ये था लक्षद्वीप आइलैंड. अभी आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में है, जहां पर 572 आइलैंड्स है. अच्छा, मैं और एक चीज बताना भूल गया इसके बारे में. द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज कावारती. इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वेस्ट में अगर आपको दिखेगा तो कावारती दिख रहा है आपको. कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. सो ये याद रखना, मैप मार्किंग या ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. PORTBLAIR, पोर्ट ब्लेयर. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड व्हिच इज डिवाइडेड बाय अ channel which is called as 10-degree channel. This is a river, a water body which divides the two islands into two groups, that is Andaman Island and Nicobar Island. ठीक है, now if you talk about Andaman and Nicobar Islands are mainly volcanic island. लक्षद्वीप क्या था? कोरल आइलैंड. ये क्या है? वॉल्केनिक आइलैंड. वॉल्केनिक आइलैंड मतलब मैंने अभी बोला ना, वॉल्केनिक इरप्शन होने के वजह से ये आइलैंड्स बना है. मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसके अंदर का जो लावा निकला, दैट लावा कूल डाउन एंड आफ्टर सम टाइम इट फॉर्म्ड अ आइलैंड. लेकिन ये अपने को आइलैंड दिखता है,
बट एक्चुअली है ये सबमर्ज्ड माउंटेन। मतलब आप पानी के ऊपर से दिखेंगे तो आपको आइलैंड ही दिखेगा, बट अगर आप पानी के नीचे देखेंगे तो आपको पूरा माउंटेन दिखेगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज वॉल्केनिक माउंटेन। और ये वॉल्केनिक माउंटेन पे बहुत सारा केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग होने के बाद में अभी आइलैंड जैसा दिख रहा है। याद है हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वेदरिंग, तो ये वेदरिंग होने के बाद में अभी अपने को आइलैंड जैसा दिख रहा है। ओके, नाउ दे आर लार्ज इन साइज विथ हिल्स, सबमर्ज्ड आइलैंड बोलते हैं इसको। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट अंडमान निकोबार आइलैंड इज अ टूरिस्ट स्पॉट, लेकिन सब आइलैंड्स में टूरिज्म होता नहीं है, कुछ ही आइलैंड्स में टूरिज्म होता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स है विच आर वो आर नॉट फ्रेंडली। ठीक है, अगर आप ट्राइब के पास जाके बात भी कम्युनिकेट करने को भी जाएंगे तो इट विल बी अ रिस्की थिंग। इसके लिए बहुत सारे आइलैंड्स में टूरिज्म अलाउड नहीं है, इवन इन लक्षद्वीप एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट सबमर्ज्ड आइलैंड, दिस इज हाउ इट अ सबमर्ज्ड आइलैंड लुक्स। आपको अगर दिख रहा है तो ऊपर आइलैंड दिख रहा है, बट ये पानी के नीचे भी उतना ही डीप में है। ठीक है, और ये वॉल्केनिक आइलैंड है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ है। Now, this is one of the most important part. Barren Island is located in island group, which is one of the only active volcano. Now, ये Barren Island किधर है? अंडमान आइलैंड में, निकोबार में नहीं है। अंडमान में ये Barren Island है, और ये Barren Island में एक एक्टिव वॉल्केनो है, जो दिस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इसमें लास्ट इरप्शन हुआ था 3 साल पहले। ठीक है, छोटा मोटा इरप्शन होते रहता है। पहले ये डॉर्मेंट वॉल्केनो था, अभी एक्टिव वॉल्केनो है। डॉर्मेंट मतलब कैसा है कि ये वॉल्केनो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉर्मेंट एंड एक्टिव वॉल्केनो। डॉर्मेंट वॉल्केनो मतलब कैसे है कि उसमें इरप्शन हुआ नहीं, बट वो है, हो सकता है, अभी वो सोया हुआ है, बट कभी भी इरप्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं डॉर्मेंट। एक्टिव बोलेगा तो जो बीच बीच में इरप्ट होते रहता है, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। तो ये डॉर्मेंट से एक्टिव हो गया। ठीक है, 2-3 years बैक बहुत बार इरप्शन हुआ है, 1991 में हुआ है, 1999 में हुआ है। ठीक है, बट इट इज अ स्मॉल इरप्शन। ठीक है, तो ये था बैरन आइलैंड। ये फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम में आएगा आपको। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट आइलैंड ग्रुप्स, हमने दोनों आइलैंड के बारे में पढ़ा, लक्षद्वीप एंड दिस थिंग अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप में भी एटॉल्स मिलता है, अंडमान निकोबार में भी एटॉल्स मिलता है। ठीक है, बट एटॉल्स आर मेनली फाउंड इन निकोबार आइलैंड, नॉट इन अंडमान। अंडमान इज मेनली फुल्ली वॉल्केनिक आइलैंड्स। निकोबार में आपको थोड़ा बहुत एटॉल्स मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एटॉल्स वहां पे भी है, बट लक्षद्वीप में आपको बहुत सारे एटॉल आइलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, अगेन इफ यू टॉक अबाउट अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पर का पॉपुलेशन लिमिटेड है, यहाँ पर टूरिज्म भी लिमिटेड है। ठीक है, एंड दिस आर द टू पार्ट्स, दिस आर टू मेन आइलैंड्स ऑफ आवर कंट्री। और स्ट्रैटेजी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अपने नेवल पोस्ट को गार्ड करता है। बिकॉज अगर कोई नेवी शिप के थ्रू या पानी के थ्रू आ रहा है अटैक करने के लिए, तो कैसे कि ये दो आइलैंड्स में पहले पता चलता है। इवन द रेनफॉल विच स्टार्ट्स इन आवर कंट्री, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस आइलैंड्स। तो ये आइलैंड को पहला रेनफॉल मिलता है, और रेनफॉल खत्म होने के टाइम पे लास्ट रेनफॉल भी इनको ही मिलता है। सो दिस was about the physical divisions of India. तो यहां पर हमने पूरा फिजिकल डिवीजन इंडिया का खत्म किया है। ओके, so you have any doubts regarding today's lecture, you can send me through chats. Okay, the capital of Lakshadweep, मेरे को एक डाउट आया, the capital of Lakshadweep is Kavaratti, K-A-V-A-R-A-T-T-I, Kavaratti. Why volcanic eruption? This volcanic eruption happened like million years ago because of the continental drift, because of the interior movement of the earth. उसके वजह से हुआ था, अभी नहीं। Yes, we can live on atolls. ठीक है, there are many small tourist spots in atolls. If you go to Lakshadweep Islands, आपको वहां पर दिखेगा वो। There are very famous tourist spot in atolls. The eruption in Barren Island is not destructive right now, because वो छोटा छोटा eruption हो रहा है,
बट या वी शुड बी अलर्ट अगर बड़ा इरप्शन हुआ, बट देन ऑल्सो देर इज नो हैबिटेट अराउंड बैरन आइलैंड। गवर्नमेंट ने कोई ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वहां पे रखा ही नहीं है बैरन आइलैंड के आसपास, बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस। Yes, Barrow Island is in Andaman Island, not in Nicobar. कोलकाता कोस्ट, मेरे को अभी एक डाउट आया है, what about Kolkata coast? Kolkata coast is not included in the coastal plains. It is a part of Indus and Ganga Brahmaputra system, Kolkata coast. इसके लिए हम लोग ये कोस्टल प्लेन में उसको इंक्लूड नहीं करते। तो जब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे तभी मैं आपको कोलकाता कोस्ट के बारे में बताऊंगा।